Okay, so good morning, my dear students. Today we will discuss the derivation of capillary rise method. Okay, last time we had discussed angle of contact and angle of contact for different liquids like impure water, methyl iodide, and mercury for all these. When angle of contact is less than 90, okay, in that case what will happen? Liquid will rise in the capillary. Okay, look here, this was the case which we had discussed in our last lecture. Suppose this is what the beaker. In this beaker, first we have impure water. Simply we'll dip a capillary. So when angle of contact, what is angle of contact? You all know that. At the surface we have to make a tangent, one on the solid surface which will be what towards the liquid, and other will be on the surface of liquid which is away from the solid. This angle is known as what? Angle of contact. And in case of impure water, this angle of contact theta is less than 90 degrees, right? And in next one, suppose again we have a beaker, and in this beaker we had discussed this one. Simply we are recapitulating. थोड़ा सा रिवाइज कर ले कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, and then we'll continue because today we have to discuss some most important derivation. That the height we have to find out in case of capillary. So this is suppose mercury. This liquid is what? Mercury. Again we'll dip a capillary. Mercury जो है वो beaker and capillary में shape कैसे लेते हैं? Convex, like this. Here we have to draw again two tangents, one along the solid towards the liquid and other on the surface of liquid but away from the solid. So in this case this is known as what? Angle of contact. And in case of mercury, theta is greater than 90. So simply हमने दो चीजों को यहां से कंफर्म किया. नंबर वन, when angle of contact is less than 90 degree, the shape of the liquid will be concave. What will? Shape of liquid meniscus will be concave. Okay? So here, shape of liquid meniscus will be concave, right? And in next one again, you can think about it. When angle of contact is greater than 90 degree, in this case, liquid will fall. Okay? And the shape will be what? Like convex. Okay? So these were two cases which we had already discussed in our last class. Now, after this, let's start the derivation. And this derivation, as I told you, this is very, very important. Not only for the 11th class, but even for NEET, JEE and for future examinations. So let's start. Okay. First, what we have to do actually? Consider a beaker. So first, I'll write a derivation. Okay. This is what our derivation. What we have to prove? H is equals to, just wait a second, 2s cos theta upon r rho g. This is the expression which we have to do here, right? H is equals to 2s cos theta upon r rho g. First, what is H? The height of the liquid which will rise in the capillary. Okay? Wait. So suppose this is what the beaker.
In this beaker we have a liquid. Like this. Okay. We have a liquid. Simply a impure water. And we'll dip a capillary. हम एक कैपिलरी इसके अंदर क्या कर देंगे? डिप कर देंगे. यू नो दैट कैपिलरी बहुत ही फाइन बोर की होती है, इसका डायमीटर बहुत कम होता है, बट फॉर द सेक ऑफ कंसेप्ट एंड आपको डायग्राम्स दिखे, दैट्स व्हाई मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा. नाउ जैसे मैं इस कैपिलरी को इसके अंदर डिप करूंगा, व्हाट विल हैपन? वाटर विल राइज इनसाइड द कैपिलरी. दिस इज केस ऑफ इम्प्योर वाटर. Okay, and this is what the solid. What will happen? Water will rise, one thing. Second thing, what will be the shape of this liquid? So you know that this is, as I told you, this is what impure water. ये impure water है. तो impure water के केस में ये क्या होगा? solid के साथ concave shape बनेगी. ठीक है? So यहाँ पर liquid will rise up to, तो इतना कर देता हूँ. This much only. Here we have a, so liquid will rise like this up to this. Suppose example लेते हैं हम, यहाँ तक हमारा liquid rise किया, and again this is impure water. तो solid के surface के साथ यहाँ पर shape कैसे बनेगी? Concave, right? So from the surface of beaker, just wait. From the surface of beaker, ठीक है, यहां से वाटर यहां तक कितना राइज हुआ? This height we have to find. We have to calculate this h. This means जब भी आप किसी बीकर को किसी कैपिलरी को किसी लिक्विड के अंदर इंसर्ट करोगे, तो उसके अंदर वो लिक्विड या तो राइज होगा या तो फॉल होगा. इम्प्योर वाटर के केस में लिक्विड राइज होता है, बट मर्करी के केस में लिक्विड फॉल होता है. बट हियर वी हैव टू डिस्कस ओनली अबाउट व्हाट? इम्प्योर वाटर और methyl iodide whatever. So here liquid will rise. So बीकर में जो वाटर है वो कहां तक है? बीकर में वाटर की सरफेस से हमारा लिक्विड कैपिलरी में कहां तक राइज हुआ है, वहां तक हम लोगों को ये जो हाइट है फ्रॉम दिस टू दिस, दैट वी हैव टू फाइंड. नाउ व्हाट विल बी द डेरिवेशन? 2s cos theta, where s is surface tension, theta is angle of contact, r is very important. Here this small r will be radius of tube. Remember, this small r is what? Radius of tube. मतलब ये जो कैपिलरी ट्यूब हमने यूज किया है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब. वन रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो भी लिक्विड हम लोग यहां पर यूज करेंगे, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं, इट इज व्हाट? इम्प्योर वाटर. सो डेंसिटी विल बी व्हाट? इम्प्योर वाटर की होगी. ये जो भी लिक्विड मिथिल आयोडाइड यूज करोगे, डेंसिटी विल बी ऑफ मिथिल आयोडाइड. एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो यू ऑल नो दीज फिजिकल क्वांटिटीज. लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन. हाउ विल स्टार्ट द डेरिवेशन एंड व्हाट विल वी डू? जस्ट वेट, लेट मी क्लियर इट. Let's start the derivation, and first of all tell me कि प्रेशर जो होता है हमारा, लास्ट टाइम हमने एक कंसेप्ट किया था दैट पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल्स टू 2s अपॉन r. होप यू रिमेंबर दिस डेरिवेशन. दिस इज द डेरिवेशन ऑफ एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप. हमने दो केसेस डिस्कस किए थे, एक्सेस प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप वन थिंग, एंड एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल. सो दिस इज द केस ऑफ एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप. सपोज वी हैव अ लिक्विड ड्रॉप. The pressure inside is denoted by Pi, pressure outside is denoted by Po. तो हमने डेरिवेशन किया था कि इनसाइड का प्रेशर हमेशा आउटसाइड के प्रेशर से क्या होता है? ज्यादा होता है. कितना? 2s अपॉन r. वन थिंग, लुक हियर in this liquid drop, you can see that surface concave इस तरफ है, जिस तरफ Pi आ रहा है, and convex इस तरफ. Okay, this side is what? Convex, and this side is what? Concave. This means that concave side pressure
इज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स साइड प्रेशर, बिकॉज कॉन्केव साइड में कौन है, इनसाइड का प्रेशर, एंड कॉन्वेक्स पर कौन है, आउटसाइड का प्रेशर। सो यहां से हमें समझ में आ गया था कि इनसाइड का प्रेशर जो है कॉन्केव साइड का, वो हमेशा कॉन्वेक्स साइड से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है। सो इन दिस केस जैसे हमने कैपिलरी इंसर्ट की इसके अंदर, इंसर्ट करने के बाद वी सी दैट कि यहां पर वाटर का सरफेस मेनिस्कस कैसा हो गया, कॉन्केव, बिकॉज एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, दैट इज ओके। ये साइड है कॉन्वेक्स, ठीक है, एंड ये साइड है कौन सी हमारी, ऊपर की, दैट इज व्हाट, कॉन्केव। सो ये हमारी कॉन्केव साइड है। नाउ टेल मी वन थिंग, व्हेन आई ओनली यू आर हियर, सो किस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, एज पर दिस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा कि ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा, कॉन्केव साइड का। इसमें कॉन्केव क्या दिख रहा है आपको, ऊपर का साइड, और ये क्या है हमारा, नीचे का साइड। तो कॉन्केव साइड हमारा कैसा होगा, प्रेशर में ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्केव, ठीक है, और नीचे क्या हो गया हमारा, कॉन्वेक्स, करेक्ट, ये क्लियर हो गया। सो ऑब्वियसली बात है, कॉन्केव इज ग्रेटर देन, बट रिमेंबर वन थिंग, दिस कॉन्केव साइड इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, बिकॉज इसके ऊपर क्या है, एयर। So anything which is exposed to atmosphere, whose pressure is atmospheric pressure, and atmospheric pressure is simply denoted by the symbol PU. It is denoted by the symbol what, PU. One thing, तो कॉन्केव साइड का प्रेशर कितना है, PU. ओके, अब आते हैं कॉन्वेक्स साइड की तरफ। कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कितना होगा, तो अभी हमने बताया कॉन्केव इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स। अकॉर्डिंग टू दिस, इसमें आते हैं हम लोग, इसको डिस्कस करते हैं कि यहां पर प्रेशर कितना होगा। सो फर्स्ट थिंक अबाउट द प्रेशर एट दिस पॉइंट। लेट सपोज दिस पॉइंट इज एक्स, इस पॉइंट का नाम क्या रख रहा हूं मैं, एक्स पॉइंट। वी हैव टू फाइंड आउट द प्रेशर एट पॉइंट एक्स। क्या फाइंड आउट करना है, प्रेशर एट एक्स। सो क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट एक्स पर कितना होगा, इसको देखो, इस फॉर्मूले से हम लोग यहां पर क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारा प्रेशर, ठीक है। इस साइड ऊपर कितना प्रेशर है हमारा, PU, ठीक है। तो कॉन्केव साइड का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, रिमेंबर दिस, कॉन्केव साइड का प्रेशर क्या होता है माय डियर, ज्यादा होता है, ठीक। तो कॉन्केव साइड का प्रेशर कितना है, PU, ओके। अच्छा, अगर मुझे इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है, तो यहां से यहां तक हाइट, हमने इसके पहले एक चैप्टर पढ़ा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसी में जब हम लोगों ने स्टार्टिंग में बर्नौलीज थ्योरम एंड ऑल किए थे, तो वहां पर हमने देखा था किसी पॉइंट पर अगर आपको प्रेशर फाइंड आउट करना है, तो ऊपर से कितनी हाइट आप नीचे आ रहे हैं, जितनी हाइट आप वाटर के अंदर जाते जाएंगे, प्रेशर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर हाइट हमने कितनी ली है, h ली है। दैट्स व्हाई यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला आएगा, दिस वुड बी P0 माइनस 2s अपॉन r, ठीक है, प्लस ρgh। समझो इस चीज को बड़ा, देखिए Px किस साइड का प्रेशर है, कॉन्वेक्स, इस साइड कॉन्वेक्स। ये कहां का प्रेशर है हमारा, कॉन्केव, ठीक है। कम टू दिस साइड, अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को कि हमारा कॉन्केव, यहां पर देखो कॉन्केव साइड का ये PO, यहां पर हमने PO लिखा, माइनस ये जो हमारा आउटसाइड का प्रेशर है, ये हमारा कौन सा है, कॉन्वेक्स। इसको लिखा था मैंने Px इज इक्वल टू, यहां कितना है, 2s अपॉन r। इनसाइड का प्रेशर कॉन्केव साइड का होता है, तो इनसाइड यहां पर कौन है हमारा, कॉन्केव साइड PO। PO जो है वो कहां का है हमारा प्रेशर, आउटसाइड का। आउटसाइड मतलब कौन सी साइड होती है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स वाला इस तरफ आ रहा है, दैट्स व्हाई मैंने PI को क्या लिखा, PO, और PO को क्या लिखा है मैंने, PX, ठीक है। और इस तरफ क्या है हमारा, 2s अपॉन r, 2s अपॉन r। सो सपोज यहां से अगर मुझे Px निकालना है, तो माइनस Px उस तरफ जाएगा, तो P0 माइनस 2s अपॉन r इस तरफ आएगा, और Px इधर चला जाएगा। तो Px का प्रेशर कितना आया, PO माइनस 2s अपॉन r यहां। बट ये तो कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर हो ना, Px क्या है, कॉन्वेक्स साइड है, और एग्जैक्टली यहां पर नहीं निकाला हम लोग। Px मैं कहां ले रहा हूं, ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर विच इज ऑन द बीकर, यहां पर फाइंड आउट करना। तो यहां का अभी प्रेशर कितना है, PO माइनस 2s अपॉन r। इसमें हम कितना हाइट नीचे, एक्चुअली ये प्रेशर यहां का कॉन्वेक्स साइड का,
PO माइनस 2S अपॉन R। अगर सिर्फ हम लोग PO माइनस 2S अपॉन R ले तो प्रेशर यहाँ पे, लेकिन हम लोग PX पर निकाल रहे थे, हम कितनी हाइट नीचे आए, H हाइट नीचे है। जब भी हम H हाइट नीचे आते हैं तो उसमें रो जी एच का प्रेशर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर PX इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, PO माइनस 2S अपॉन R प्लस कितना आ रहा है H हाइट, तो इट विल बी व्हाट, रो जी एच। So here Px is equals to PO minus 2S upon R plus rho g H। इस तरीके से हमने प्रेशर एट पॉइंट X क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर है मुझे। अब इसके आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को सेट करना है। नेक्स्ट सपोज मैं इसी यानी सरफेस पर और दो पॉइंट्स ले लेते हैं। ये X पॉइंट है, सपोज यहां पर मैंने ले लिया पॉइंट Y एंड हियर आई हैव अ पॉइंट व्हाट Z। ठीक है, now tell me this Y and Z both are exposed to air, atmosphere. So the pressure at Y and pressure at Z will be what, P naught। जो atmospheric pressure होगा वही वहां का pressure होगा। तो pressure at Y is P naught, pressure at Z is P naught। Again हमने एक property पढ़ी है इसी चैप्टर के अंदर कि when there is a static liquid, अब ये लिक्विड फ्लो हो रहा है, स्टैटिक, इट इज ऑल स्टैटिक, बीकर में रखा हुआ, इट इज नॉट फ्लोइंग ना, दैट्स व्हाट इज स्टैटिक। स्टैटिक फ्लूइड, रुके हुए फ्लूइड के सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स सेम। दिस मीन्स दैट प्रेशर एट X इज इक्वल्स टू प्रेशर एट Y इज इक्वल्स टू प्रेशर एट Z। इज इट राइट? करेक्ट। प्रेशर एट Y एंड Z कितना है, PO, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इट इज व्हाट, PY पर कितना है, O, एंड PZ पर भी कितना है, O। Px is equals to these two. This means that Px is equals to what, P naught। करेक्ट है ये भी, ठीक है। सो Px एक्चुअली कितनी आई हमारी वैल्यू, P naught। सो पुट द वैल्यू ऑफ P naught ओवर हियर इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में P naught की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, Px की जगह पुट करेंगे P naught, राइट साइड विल बी सेम। सो P naught माइनस 2S अपॉन R प्लस रो जी H। नाउ व्हाट विल हैपन, so you can see that this P naught will come here, P naught minus P naught will become what, 0, so 0 is equal to minus 2S upon R plus rho g H, right? This minus 2S R will come this side, so we'll get 2S upon R is equals to rho g H. It is visible? It is okay. So here what we have to do, we have to find out the value of H, right? So here we will write H is equals to, rho g को क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस तरफ लेकर आ जाएंगे, so it will be what, 2S upon R rho g। Wait, H is equals to 2S upon R rho g। This R is capital R and this R is what, is small r। ठीक है, so this means that we have to convert this capital R into small r। बड़े ध्यान से समझ लें इस पॉइंट को, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी पॉइंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ इट इज क्लियर अप टू दिस वन। क्या क्या किया हमने, एक बीकर लिया, एक बीकर के अंदर हम लोगों ने कैपिलरी को जो है इंसर्ट किया। बीकर में हम लोगों ने सपोज इम्प्योर वाटर या मर्क्यूरी रखा था, जैसे हमने उसके अंदर एंटर किया कैपिलरी को, वाटर विल राइज। कितनी हाइट तक राइज किया है उस एच को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, वी ऑल नो दैट कि वाटर मेक्स अ कॉन्केव मिनिस्कस, ठीक है, इन कैपिलरी, एंड concave side का pressure is always greater than convex side। concave is exposed to atmospheric pressure, that's why the pressure will be P naught। what about convex, इसके नीचे आएंगे तो इस फॉर्मूले से जो मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम लिक्विड ड्रॉप वाला, वहां से हमने यहाँ का प्रेशर निकाला एंड दैट प्रेशर वाज P naught minus 2S upon R। but we will find the pressure at point X। this point X is H height below, so the pressure will add rho g H। after this we have to find X, Y and Z both are at the same horizontal level, and this is the case of a static fluid। in case of a static fluid, the points which are at the same horizontal level all are having same pressure। these two having pressure of P naught because they are completely exposed to atmosphere, and the X is always in equal level, that's why the value of X will be what, P naught। simply put the value of P naught in this equation, we'll get this result। but what we find here, H is equals to 2S upon R rho g। okay, 2 is in the formula, S is in the formula, rho and g is in the formula, R and cos theta are not here। this R is small, this R is capital। what is the difference between these two small and capital R? so let's discuss, this is again very important। okay, so I'm going to rub this and now just remember this formula,
H is equals to 2s upon r rho g. Look here, मैं आपको स्मॉल आर और कैपिटल आर में अब डिफरेंस बताने जा रहा हूं, ठीक है। कंसेप्ट ये है कि आपको समझाने के लिए राइट नाउ जो मैं कैपिलरी ले रहा हूं थोड़ा सा बड़ी बना रहा हूं ताकि आप इजीली क्या कर सको उसको समझ। कैपिलरी में हमारा वाटर का जो सरफेस था इट वाज लाइक दिस, करेक्ट, मेनिस्कस था, ठीक। नाउ माय डियर लिसन, ये क्या है, कॉन्केव साइड है, मतलब ऐसे बना रहा हूं, करेक्ट। दिस इज व्हाट, नथिंग बट द आर्क ऑफ अ सर्कल। ये एक सर्कल की क्या है, आर्क है। इसका मतलब अगर हम इसको कंप्लीट करें जैसे मैंने बनाया था, सो ये सपोज ऐसा बन जाएगा हमारा, ठीक है। इसमें से सपोज ये हमारा क्या है, मेनिस्कस, राइट ना। मेनिस्कस इज व्हाट, पार्ट ऑफ द सर्कल। तो यहां पर ये मेनिस्कस आधा बना, ये पार्ट ऑफ द सर्कल है माय डियर। सो एज पर दैट दिस इज मेनिस्कस, वेट, हाँ, एंड दिस इज आवर कैपिलरी ट्यूब। ये क्या है माय डियर हमारा कैपिलरी ट्यूब। सो ये कैपिलरी ट्यूब का क्या है, सरकमफेरेंस। कैपिलरी ट्यूब के ऊपर से आप ऐसे देखोगे तो आपको वाटर कैसे दिखेगा, सर्कल दिखेगा। तो ये कैपिलरी ट्यूब है, बट दिस इज व्हाट, मेनिस्कस। सो मेनिस्कस इज द पार्ट ऑफ सर्कल। सो इसका रेडियस कहां होगा माय डियर, इसका मेनिस्कस का रेडियस कहां होगा, द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो हियर सपोज दिस इज व्हाट द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो दिस इज व्हाट रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। ये क्या है, रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। एंड ये देखिए, दिस इज व्हाट सरकमफेरेंस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। से दिस इज कैपिटल आर, सो कैपिटल आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। स्मॉल आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। सो कैपिटल आर radius of meniscus and small r is what, radius of capillary tube. I hope you got the point. What is the difference between small r and capital R, correct? Now we have to find the value of small r, no? Right? So we'll make a perpendicular here at this point, इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। मैं इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, पहले भी मान लो कि इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, थीटा होगा। जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा वही यहां पर एंगल होगा।